इसके बाद मैं जो जर्मनी से आई है एना, इनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी प्रस्तुति करें। एना प्लीज प्रेजेंट। नमस्ते, मेरा नाम आना है। मैं 20 साल मैं जर्मनी से हूँ। Basically, by growing up in a society where you always are confronted with news about climate change, pollution, all kind of crises, there was like one big question in me, and it was how to change this world for something better. I started exploring a lot of different philosophical and political theories. I tried to engage a lot in different political events, in the local youth council, in groups for animal rights, human rights. I met a lot of like-minded people, and yeah, we learned a lot together, but still there was like not really an answer of how to live and how to solve those things. I started to go to a lot of protests. I had very strong viewpoints, and I thought I'm totally like standing up for the right thing. While going to those protests, I felt very successful. I thought I'm doing something really good. But afterwards, I would start questioning myself, like, is this really bringing some change in society? Is this my role? Am I like meant to stand on the road and shout out equality and think the louder I shout, the more equality is around me? It definitely doesn't work like that. It's my waste and so on. But also, this is a very small part of a really large picture. And even if every human being would change their lifestyle to a more environmentally friendly way, there would still be a big question mark on our human-human relationships. While doing all of this, high school was going to end. I passed my exams, and I was still up with the question of what to do in my life. I decided that it might be a good idea to go to India and do a voluntary service in the school here. I thought education is the way to change something. So I did work in a school for 1 year. I had a lot of good experience while doing that. It was really nice to see how the kids got educated, but in the end of the day, I just saw that kids are still getting prepared to fit into a cycle of going to university, going for a job, earn money, spend money, earn more money, spend more money, and so on. So this was also not really an alternative for me, and I was still on my search of what to do in my life. So since I was still looking for something, I decided to still not go to university, so I traveled to Canada. In Canada, I started living at Center for Harmonious Coexistence, and it was basically the first time in my life that I was really participating in family living. I was growing up without siblings, so I was always just living with my parents. And there were kids, there were other people my age, and it was really nice to participate in this kind of family life. And I started to get to know Matthias Dersham. And yeah, with studying that, a lot of my logic got satisfied, and I got an answer to a lot of my questions. And the main thing was, it was not only a logical answer, not only a theoretical answer, but an answer that was able to get reflected in my daily living. I'm feeling very happy with being part of the center in Canada, and also to see what is already going on here in India. And yeah, at the center I'm learning a lot of useful skills for living in a self-reliant and sustainable living model. I again also saw this during the last weeks here in India, and yeah, I think by learning how to participate in such a living model, I'm getting a lot of confidence of living together with each human being and with the environment, in equality and in an environmental friendly way. Yeah, and also through all those soft and hard skills that I got through the last month, I got a lot of confidence in this way of living, and I came from a
background that was very problem oriented, I would be able to like see all the issues around me, but I would kind of get stuck in trying to solve those things. And now I'm able to see that there's like a way to solve those things, so I'm way more solution centered now, and that's a big change for myself, and I think that that's really nice. And what I also figured out is that not I myself will bring any change in society. If I just change my personal lifestyle, it will not lead anywhere. Because if we want to really change something, we have to recognize our relationships with people around us, with the environment, and by living in orderliness within and with each other, I think together we can make a really big societal shift and really have an impact. And not only for ourselves, but also for all the generations that will come after us. Thank you. नमस्ते, हिंदी में उनका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ऐना है, मैं 27 साल की हूँ और 20 मैं 20 साल की हूँ और जैसे कि बचपन से मैं स्कूल जा रही थी, तो उसी दौरान ही मेरे आजू बाजू परिवार में, आजू बाजू में, आस पड़ोस में और विदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसको समझने की ऐसा प्रवृत्ति बनी। तो उसको समझने के अर्थ में मतलब इसे निरंतर मैं शोध करती रही। तो इसी दौरान में बहुत सारे जो फिलोसफी है, बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो ग्रुप्स है, उनको मैं स्टडी करने लगी। तो उसको करते हुए उनमें भी पार्टिसिपेशन मेरा बढ़ने लगी। तो जैसे बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है, जो एनवायरमेंटल और ऐसे पॉलिटिकल जो ग्रुप्स है, कुछ ह्यूमन राइट्स के ऊपर ऐसे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करने लगी। तो करते हुए मुझे ऐसा अच्छा तो लगने लगी कि ऐसा कुछ रिजल्ट भी आने लगी, तो उस प्रकार थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी आने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो मुझे एक प्रकार से पूरी तरीके से पता नहीं सेटिस्फेक्शन की जगह नहीं मिली। तो उसकी और समझने के लिए उसी को मतलब आगे बढ़ाते हुए मेरी हाई स्कूल जैसे खत्म हुई तो मेरा दिल्ली आना हुआ। तो दिल्ली में मैंने एक स्कूल के साथ काम किया। तो इस स्कूल में मैंने बहुत सारे एक्टिविटी भी लिए, तो बच्चों के साथ काम हुआ। तो उसमें भी मैंने अच्छे से काम किया, तो उसका भी कुछ रिजल्ट भी आया। परंतु ये भी देखा उसमें कि जो बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ और जिनके साथ मैं एक्टिविटी करा रही हूँ, तो उन बच्चों का अल्टीमेट फ्यूचर क्या है, वो कहाँ पे जाने वाले हैं। तो मैं जिस समस्या से गुजर रही हूँ, तो क्या वो लोग भी उसी में जाने वाले हैं या क्या कुछ और है। तो ये प्रश्नों के साथ मैं वहीं से निकला। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मेरा डिससेटिस्फेक्शन बना ही था मेरे मन में। तो इसी के चलते हुए और घूमना पड़ा, और जैसे मैंने निर्णय लिया था कि मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करूँगी जब तक ये थोड़ा प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलती है। तो ये चलते चलते फिर ऐसा इंसिडेंटली ऐसा कोइंसिडेंस मैं कनाडा पहुंची। तो उसमें ऐसा एक सेंटर के नाम पे है, सेंटर फॉर हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस करके, उसमें मैं आ गई। तो वहाँ पे आने से देखा कि वहाँ पे कुछ लोग एक प्रकार से जी रहे हैं। तो उसको मैं समझने लगी कि ये लोग किस प्रकार से जी रहे हैं। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें देखी, जैसे ये लोग बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं, एक दूसरे में अच्छे से कैसे बिहेवियर करें उसके ऊपर काम करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। और उसके साथ वेजिटेबल कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर और ऐसे कुछ कुछ मुद्दों को लेकर काम करते हैं। तो ये देखते हुए मुझे काफ़ी एक कॉन्फिडेंस बढ़ी और एक विश्वास का जगह भी आए। तो इसको मैं अध्ययन कर रही हूँ अभी भी। तो एक अपने आप को एक अच्छी जगह पे पाती हूँ कि कुछ पूरे जो होता है ना दुनिया को एक पूरी दृष्टि से देखने की ऐसा एक जगह बन गई। तो इसको मैं आगे बरकरार रखूँगी। और साथ में ये भी है कि बाकी जब दुनिया को देखता हूँ कि होता है ना ओवरऑल कंफ्यूजन बना रहता है, तो उन चीज़ के तुलना पे मैं देखता हूँ कि एक अच्छी जगह पे ऐसा पहुँची हुई ऐसा मुझे लगता है। और शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। अच्छा है, बढ़िया है। फिर इसके बाद पद्मा,
जो मानवता से है वो अपनी प्रस्तुति रखेंगे। सभी को नमस्ते। मेरा पूरा एक जो बैकग्राउंड था कि पापा बचपन से लोग को मतलब पापा पहले से जुड़े हुए हैं जीवन विद्या से, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो ज़्यादा क्वेश्चन तो कभी भी नहीं रहते कि अभी ये जानना है या कुछ भी जानना है इस तरीके से। और जैसे ही अभी मध्यस्थ दर्शन से जुड़ी मैं, तो कई सारी चीज़ों की क्लियरिटी बनी है कि अभी शिक्षा क्यों, संबंधों में कैसे जीना, कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, उन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी पता चली है। तो जैसे कि पापा पहले से जुड़े हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं हमेशा परिवार में ही रहना हुआ। तो परिवार में रहना हुआ तो सिर्फ जितने मेरे रिलेटिव्स थे सिर्फ उतने में मेरे को जीना बनता था। उससे आगे किसी से कैसे बात करनी है, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना है, उसकी जानकारी नहीं थी। मतलब समझ ही नहीं आता था कि अब सामने बात कैसे रखा जाए। तो उसकी क्लियरिटी यहाँ आके अच्छे से समझ आए कि हमको सामने बात कैसे रखना है, अपने विचार कैसे व्यक्त करना है, सही चीज़ की जानकारी कैसे देनी है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पता चली। और ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं है, और मैं ज़्यादातर चीज़ों को व्यक्त करने में अभी भी काफ़ी असहजता महसूस करती हूँ। तो अभी मैं इतना ही बोल पाऊँगी। धन्यवाद। पद्मा दीदी का ये क्वालिटी अच्छा है। आपने अभी वीडियो में जो देखा ट्रैक्टर चलाती हुई लड़की, वो यही थी। तो इनके लिए तालियां बजाएं। जो स्त्री पुरुष समानता का मुद्दा सुबह से हम चर्चा भी कर रहे थे, कुछ कुछ पॉइंट्स भी आए। तो हम लोग ने वीडियो में भी देखा किचन में काम करना है, खेती में काम करना है, ड्राइविंग का काम करना है या औषधि का काम करना है, सब एकजुट सब मिलके कैसे काम कर रहे हैं, ये हम लोग ने देखा। तो अभी दूसरे हम लोग जो ट्रैक्टर चलाते हुए भैया को देखा, उनसे मिलते हैं। अमृत भैया अपनी प्रस्तुति करेंगे। सभी को नमस्ते। मेरा नाम अमृत है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। फॉर्मल एजुकेशन में मैंने एनवायरनमेंट में इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद करीब 8 महीनों से मैं मानव तीर्थ में हूँ। तो एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा, उससे लगभग मेरी बात आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। तो मैं लगभग 11 साल का था तब एक क्लास में एक सर्वे हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था कि आपके माँ बाप क्या करते हैं और आप क्या करना चाहते हो। तो मैं लास्ट बेंच में बैठा था, मेरे बाजू में मेरा बेस्ट फ्रेंड बैठा था। मैंने अपने बारे में बताया और जब उसकी बारी आई वो काफ़ी हिचकिचक के और एकदम डर के साथ ऐसा बोला कि एकदम कि मेरे पापा खेती करते हैं। और क्योंकि हमारे क्लास में ऐसा कोई भी लड़का नहीं था कि जिनके पिताजी या कोई भी फैमिली बैकग्राउंड में कोई खेती करता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर सिटी में रहते थे। तो उसके बाद मेरे मन में उसके लिए एकदम नेगेटिव भाव आ गया और मैं समझता हूँ उसके बाद मैंने उसके साथ एक अच्छी निश्चित दूरी को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि जो 11 साल की मेरी उम्र थी, उस टाइम मेरा ये विचार था कि जो भी आदमी मजदूरी करता है, जो किसानी करता है, जो भी इस तरीके का काम करता है, वो सब छोटे लोग हैं। तो ये जो मानसिकता जो मैं उस टाइम देख पाया, तो मेरे को लगता है इसको बढ़ने में या डेवलप होने में या टूटने में लगभग 10 साल लग गए। जब मैं लगभग कुछ उम्र में आया, जब बहुत सोशल नेटवर्किंग साइट से एकदम एक्टिव हो गई, तब बहुत सारे वीडियोस फार्मिंग के लिए और ये सब चीज़ों के लिए एक सोसाइटी में आए कि भाई फार्मर्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो बेसिकली मैं ये देख पाता हूँ कि वो जो जर्नी रही 10 साल की, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो कई लोगों ने ये शेयर किया कि हम लोग को श्रम के प्रति विश्वास बन गया है ना। तो मैं सोचता हूँ मेरे को श्रम के प्रति स्वीकृत होने में इतना सारा समय लग गया। तो बेसिकली मैंने जो कुछ टाइम में 8 महीनों में किया, तो एक टाइम पे मेरे को श्रम के प्रति स्वीकृति हुई। फिर मैंने श्रम करके देखा, तो मैं श्रम के प्रति मेरा विश्वास बना और उसके बाद मैं श्रम का सम्मान करना भी आज देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली 8 महीनों में मैंने बहुत सारे ऐसा काम किए जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं किए थे। मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। तो जैसे सभी लोगों ने बताया कि हमारे पास गौशाला है, खेती है ना, हम लोग निंदाई करना, तो जितने भी ग्राउंड लेवल के वर्क्स है वो सारे किए। तो कंक्लूजन में मैं अपनी बात को और सटीक करूँ तो उसमें पता चलता है कि जैसे जैसे आप कोई चीज़ करते हो तो उसमें आपका विश्वास बनता है, उसके प्रति स्वीकृति बनती है, उसके प्रति सम्मान बनता है। तो जब तक मेरे पास एक थियोरी थी कि किसान अच्छे, फार्मर्स अच्छे है ना, आज पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि फार्मर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारी थियोरी थी, लेकिन जब तक हम उसको एज इम्प्लीमेंटेड, एज जीके नहीं देखते, तब तक ना हमारे में वैसा विश्वास आता है, ना हम लोग वैसे खुद में उस भाव या मूल्य को देख पाते हैं। तो ये एक रहा कि मैं अब ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ वो करके।
तो एक जो हमारा पार्ट था रिलेशनशिप का, तो उसमें एक बात आई कि भाई हम लोग मूल्य, जो इमोशंस है ना, जो वैल्यूज़ है रिलेशनशिप में, वो हमारे अंदर उभर नहीं आ रहे। कभी कभी वैल्यूज़ आते हैं और कभी कभी चले जाते हैं। तो बेसिकली जब हम उन वैल्यूज़ में जीते हैं तब वो वैल्यूज़ हमारे में उभर के आते हैं। तो बेसिकली मैं ये भी देखता हूँ कि मध्यस्थ दर्शन की जो हमारी पढ़ाई रही है ना, हमने जो उसका पठन किया, उसमें हमारा अभ्यास रहा, तो कोई भी चीज़ एक रोशनी में होती है। अभी तक जो दृष्टि, जो परसेप्शंस मेरे को मिल रहा था, वो मेरे को नहीं मिल रहा था। मैं बहुत सारा दूसरा हम देख ही रहे थे, सम्मान कर ही रहे थे, बहुत सारे लोग मेहनत करते ही है, लेकिन वो विश्वास नहीं बनता है क्योंकि हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं रहती है। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि कोई भी चीज़ को, रिलेशनशिप्स को, कोई भी चीज़ को अगर हमको और सटीक कैसे देखना है, तो कोई चीज़ की रोशनी चाहिए। तो मेरे को जो मध्यस्थ दर्शन है उसको पढ़ के एक रोशनी, एक दृष्टि, एक परसेप्शन मिला। और एक और पार्ट में देखता हूँ कि अधिकतम ऐसा रहा कि भाई मम्मी काफ़ी ज़बरदस्ती करके सभी लोगों को खिलाना पिलाना, एकदम आग्रह से एक रहता है कि भाई आप लोग खाओ, और एकदम उनका एक ममता मूल्य रहता है, लेकिन कई बार वो अखड़ता है। तो मैं अपनी लाइफ में ऐसा देखता हूँ कि मैंने वैसे सम्मान नहीं किया मेरी मदर का जब वो खिलाते थे या उस तरीके से आग्रह करते थे, क्योंकि मैं कभी उनका ममता मूल्य समझ नहीं पाया। लेकिन मैं ये देखा कि जब मैं खुद किचन में काम किया, जब मैंने खुद किसी को खिलाया, जब मैंने खुद बनाया, जब मैंने देखा कोई नहीं खा रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए, जब मैं उस चीज़ को जी के देखा, तब मेरे को पता चला कि हाँ, मेरे अंदर कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, या मम्मी के अंदर उस टाइम कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जब हम जीते तब हमको उस जो संबंध है उसका आस्वादन होता है, उन मूल्यों का आस्वादन होता है। तो इस चीज़ पर बहुत अच्छे से ध्यान गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे मूल्यों को जी के इन जो 8 महीनों में हम लोग ने देखा, तो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप्स पे काम हुआ। काफ़ी सारे जो सवाल थे उनको जी के, उनको अभ्यास करके उनको ठीक करने का पूरा प्रयास रहा। तो ऐसा एक बहुत अच्छा मानव थेरेपी में एक जर्नी रहा। थैंक यू। बहुत ही अच्छे से रखा उन्होंने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रस्तुति करने जा रहे हैं स्पेंसर भैया, जो कनाडा से है। वो 2014 में भी वो भारत आए थे, जब इस दर्शन से उनका परिचय हुआ, और यहाँ पे लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे इसका प्रयोग चल रहा है, इसको समझने के लिए फिर वापस कनाडा जाके कुछ प्रयोग उन्होंने किए, और अभी इतने वो उत्साही है कि अपने साथ कुछ और दोस्तों को भी लेके आए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी प्रस्तुति रखें। स्पेंसर। Okay, hello. Namaste. मेरा नाम स्पेंसर है। मोर नाम स्पेंसर हवे। ना पेरू स्पेंसर। मारो नाम स्पेंसर छे। मज़नाव स्पेंसर आहे। हमार नाम स्पेंसर हा। नन्ना हेसिरो स्पेंसर. Okay. I hope everyone understood. Yeah. So there's a very popular story in Canada. Very popular. I don't know who the author is, but almost every parent tells this story to their children. And the story goes, after class 12, you should go to college, go to university. You should get a good degree. You should get a good job. And after you get a good job, you should earn enough money so you can enjoy your life, relax. So, how many people have heard this story before? Some? Okay, good. So I also heard this story and I started to believe in it. So naturally after class 12, I decided that I would go to university to take a BSc in environmental science. I wanted to do something to help the environment, save the environment. But after I started my first year, I realized that this was not the path for doing so. I found it to be more of a training program for how I can work in a specific field, and that is in the fossil fuel industry where I live, petroleum industry. They require environmental scientists so they can measure and track how quickly they're destroying things, basically. And so they can destroy things a little bit slower. That's the whole idea. So after finding this out, I was a little not so enthusiastic anymore about my program. I went back to this story and I thought, okay, get a job, earn money, be happy. But it wasn't making sense anymore. I thought, you know, how can I be happy if my job is exploiting the environment? You know, how can I become happy while destroying the earth? It didn't make so much sense. So this was one question, and second thing was,
I was learning many things, many skills for this career, but I still felt that many things were missing in my education. I didn't know basic things, like how to cook food, how to clean, how to take care of my health. This I wasn't very clear. I didn't know how to have good relationships also. I had lots of trouble in my relationships, whether it's friends or family. So these things I was also not very clear. I didn't know what to do about the poverty and inequality that was going on in the world. I had traveled a little bit and I had seen extreme poverty and extreme wealth in my city as well, and it didn't fit right, but I also didn't know what to do. Also, I was quite clueless with regards to the environment, you know? Like, is it something in our lifestyle? Is it something in the industry? How can we stop damaging the earth? You know? So these questions were there, and I wasn't finding answers in my first year of university, so I decided to take a break. I had been in school for 13 years after all. I deserved some vacation. So I went searching for an alternative. In that time, I came to know about Madhyas Darshan, and I decided to join the center in Canada, which is living in light of this philosophy. So I've been there for 4 years, and in those 4 years, I have found that all these queries, all these questions and concerns that I had have slowly become resolved. You know, I've gained confidence that how we can live well in relationships. I've gained many skills as well, like I was saying, how to cook, how to clean, those basic things, and way more than I anticipated. How to do farming, how to do carpentry, construction, photography, education, many different things. I also gained confidence that there is a way of living where it will not lead to that inequality that we see, that rich and poor. And I gained confidence that that is possible, and that there's also a way of living in which we can arrange where we're not damaging the earth. And I can earn my livelihood in such a way where I'm not exploiting the nature. So all this confidence I gained in the last 4 years, and through this, in summary, I learned that, you know, education is not just about career. This is one small part, you know, of a human's life. But education is much more, and I realized that education should include, you know, how we can live well with one another, with the environment, how we can be happy, how we can feel secure, and how collectively as a society we can find cohesion and be able to live sustainably on this earth. So my definition of education broadened so much, and whatever I had experienced in the past was that education was not complete. And I feel like if it does not address these things, then something in education is missing. So through Madhyas Darshan, through living at the center in Canada, slowly, all my queries, all my doubts have become resolved or becoming resolved. And I have gained confidence for my future. I no longer have any fears or concerns. What's going to happen? What am I going to do? Where am I going to be? None of these things are bothering me anymore. And so I feel very fortunate for all of this. And I think we have an amazing opportunity in front of us. I would invite you to explore further if it's something of interest. So together we can participate in global solution. Thank you so much. So we'll have one short presentation about the center, just so you can get some visual about what's going on there. So just a few pictures here. Is it on? Okay, so here we have the center. Okay, yeah, you can go back one, right? You can go back one. So, Center for Harmonious Coexistence. Okay. There's just some going through some settings, but it's there. Okay, so this is Center for Harmonious Coexistence. Currently, I am living there with Anna, Barbara, and Lucas, and a few others who are back in Canada right now.
This is just one of the buildings we have there. Next slide. So just a quick presentation we made, some different things going on, farming, projects, education, our university. So here's some of the production that we have going on in the garden, making some produce, working together, having fun. These are some of the construction projects that we've done. So we've gained a lot of skills in Canada. We've been able to learn a lot of woodworking and even how to build houses, all these things. So there's some shelves, some guitar stand, something we made in the bathroom, the cabinet. So these are some of our recent projects that we've done together. We've also been learning a lot about the native plants that are around us and how we can identify them, harvest them, and process them into different medicines or supplements or health products. So here's Barbara. She's got a handful of greens from the garden. Here's some of our more construction going on, working together, having fun, and everything is very educational. As we work together, we're learning from one another and improving our skills and our relationships at the same time. So Sona Betaji, I think me and Lucas and Anna are there, and Livia in Canada. So we're also focusing on developing children's education content. So we're currently in the process of writing many songs, books, games. And this is our upcoming 3 months course. So just as you guys have different study programs going on in Manavtir, in Indore, in Achoki, and various other centers, this is our version, which we are hosting from this June till the end of August. Thank you very much. नमस्ते, माय नेम इज स्पेंसर। मेरा नाम स्पेंसर है, हमारा नाम स्पेंसर। सॉरी, आई कैन स्पीक इंग्लिश मच। तो बचपन से मैं ऐसा एक कहानी सुनते आया हूँ कि बच्चा पढ़ाई करो बढ़िया से, पढ़ाई करके अगर बढ़िया नौकरी मिलेगी, बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाँ, तो उससे क्या होगा, जिंदगी मस्त हो जाएगी, बढ़िया से आराम से रह पाओगे, रिलैक्स लाइफ जियोगे। तो इस प्रकार ये कहानी कितने लोगों ने सुने? बढ़िया, अच्छा। तो मेरा भी कुछ उस प्रकार ही शुरुआत हुई। तो मैं जैसे जैसे चला, पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद जॉब भी किया। तो मैंने पढ़ाई BSc एनवायरमेंटल साइंस पे की। तो वो होने के बाद मैं नौकरी भी ज्वाइन किया एनवायरनमेंट के ऊपर। तो काम करते करते ये ध्यान में गया कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम के तहत प्रकृति के ऊपर काफ़ी शोषण हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे स्वीकार नहीं हुआ। तो फिर से मैं उस कहानी को दोबारा दोहराया कि जो बताया गया कि भाई अच्छे से नौकरी करो, पढ़ाई करो, नौकरी मिलेगी, पैसा कमाओ और ज़िंदगी बढ़िया से गुजरेगी। तो लेकिन ये मैं जब जिस स्थिति में खड़ा हूँ तो वहाँ पे तो वो दिख नहीं रहा है कि सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा था। तो उसको दोबारा मैंने और डीपर स्टडी के लिए उसमें गए। तो कहीं ना कहीं और भी देश विदेश घूमे, तो उसमें ये भी देखा बहुत सारी चीज़ें और भी समस्याएं दिखी, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, अमीरी गरीबी है, फिर बहुत सारे ऐसे वार युद्ध होते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं, कैसे होता है, ये सब भी मतलब ऐसे चल रहा था मन में। तो इसी दौरान कनाडा में जो सेंटर फॉर हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस, इसके साथ मेरा जुड़ना हो गया। तो उसमें रहते हुए इन सारी चीज़ों का कुछ जो प्रश्न थे उसका भी कुछ उत्तरित हो गए और बहुत सारी चीज़ें अभी उत्तरित होने जा रहा है, ऐसा एक आश्वस्ति बनी। तो हाँ, कुछ इस प्रकार रहा। और हमारे कनाडा में जो सेंटर चल रहा है इसके बारे में जानकारी के लिए और यहाँ पे कोई भी और इच्छुक हो कि भाई हमारा भी ये प्रश्न है या थे, मेरा भी वही था। तो प्रश्नों से ही मुझे लगता है शुरुआत हुई थी मेरी। तो एक चीज़ यानी जब स्कूल में पढ़ता था तब एक चीज़
ध्यान में आ गई थी कि कोई भी चीज़ पे कोई भी चीज़ को सीधा सीधा समझना है तो उसके जो एक्सपर्ट है ना उसको जाके सीधा मिलो और उसके पास से समझो, है ना। तो शुरुआत के प्रश्न तो घर से थोड़ा थोड़ा जवाब मिल जाता है, जैसे जनरल नॉलेज है ना, देश का बड़ा प्रधान कौन है, ऐसा। दूसरे जो प्रश्न थे ना जो विज्ञान के साथ जुड़े थे, और उस समय पे जो मेरे आसपास का वातावरण था उसमें मुझे ऐसा समझ में आता था कि वैज्ञानिक है वो सब जानता है, वैज्ञानिक है वो जो वास्तविकता है, जो अस्तित्व है उसकी वास्तविकता को प्रकृति है वो कैसे काम करती है तो उसके ऊपर सोचता है, वो सब जानता है या फिर वो जानने के प्रोसेस में है। तो एक ऐसा भी बन रहा था कि भाई आगे जाकर वैज्ञानिक बनना है, वैज्ञानिक बनेंगे हम। तो ऐसे मेरे शहर में, मैं गुजरात का हूँ, तो शहर में जो भी लोग आते थे, वैज्ञानिक आते थे, सामाजिक कार्यकर्ता आते थे, पॉलिटिशियंस आते थे, धर्मगुरु आते थे, तो उनको जाके मैं सीधा मिलता था और उनसे बातचीत करता था। तो एक समय ऐसा आया कि ये सब बातचीत करते करते पक गया मैं, और मुझे लगा कि अभी मुझे खुद से सोच विचार करना है कि यानी इन सब चीज़ों को जोड़ना है कि ये लोग जो बोलते हैं वो पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, तो कोई एक जगह पे जाके बैठ के वहाँ पे सोचते हैं। तो एक जगह पे जाके बैठ गया और सोचने लगा, उसमें लगा कि उसमें फिर कुछ किताबें भी पढ़ी, और तब मुझे लगा कि ये तो हम यानी अकेले में तो मैं नहीं कर पाऊँगा, यानी बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ी, बहुत अलग अलग विषय है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा, ऐसा सब चल रहा था अपने अंदर। उस समय मुझे किसी ने बोला कि भैया यहाँ पे एक जीवन विद्या नाम की शिविर होती है, और वहाँ पे हम गए थे और हम लोग खूब कंफ्यूज थे और हमारा कंफ्यूजन वहाँ पे दूर हुआ, हम निराश भी हो गए थे जीवन से। तो मैंने सोचा कि होगा कुछ, चलो ठीक है। फिर एक साल के बाद फिर वापस उस समय तो निगलेक्ट कर दिया था, एक साल के बाद वापस किसी ने वापस दूसरे भाई ने बोला कि भाई यहाँ पे एक वर्कशॉप होने वाला है, और तब मैं उसी जगह पे था और 2 दिन में 3 दिन में वो होने वाला था। तो मुझे लगा कि ये क्या जीवन विद्या वर्कशॉप है, मैं तो जी रहा हूँ, मैं भी सब्जी उगा के ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं भी खा रहा हूँ, मैं भी श्रम कर रहा हूँ, ये क्या है। तो 3-4 लोगों ने मुझे खूब समझा, तो मुझे विचार आया कि चलो वहाँ जाके बैठते हैं वर्कशॉप में। और मैंने बोला कि मैं 1 घंटा बैठूंगा, मुझे लगेगा कि भाई ये बात सही है तो मैं उसको पूरा 1 दिन सुनूंगा, और लगेगा तो 7 दिन सुनूंगा। तो 7 दिन का वो वर्कशॉप था। तो फिर मैं 1 घंटा बैठा वहाँ जाके, और वो पहला ऐसा वर्कशॉप रहा मेरे लिए। उसके पहले भी मैंने कई चीज़ें वर्कशॉप वगैरह कर रखा था, तो पहला ऐसा रहा जिसमें मैंने बैठ के सिर्फ सुना है। और 7 दिन के बाद मुझे लगा कि ये तो अभी तक की जो बातें मेरी जानकारी में है, और मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, वो लोग जो बात करते हैं ना उससे आगे की एक बात कर रहे हैं ये लोग। तो वर्कशॉप ख़त्म हुआ और 2-3 दिन हुए हैं, और मेरे अंदर कांस्टेंट इन सब चीज़ों पे सोच विचार चल रहा है। उस दौरान मानव व्यवहार दर्शन करके एक किताब है बाबा जी की, नागराज जी की, तो वो मेरे हाथ में आई। उसमें उन्होंने लिखा है सब कि मुझे भी ऐसा सब प्रश्न थे, और फिर मैंने ये साधना की, मुझे कुछ जवाब नहीं मिला, फिर ये जवाब मिला। तो वो सब पढ़ा, बीच का कुछ समझ में नहीं आया। फिर लास्ट का पढ़ा, लास्ट में लिखा था सब संबंधों के बारे में। वो पढ़ के मुझे लगा कि ये तो एकदम यानी जो चीज़ मुझे बचपन में जाननी थी ना, वो एकदम शॉर्ट में, सार रूप में इसमें लिख दिया है ना। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति सच में कुछ समझे हुए लग रहे हैं, तो उनको जाके मिलना चाहिए। तो वर्कशॉप के 3-4 दिन हुए होंगे, मैं सीधा यहाँ अमरकंटक आया, जो भी पहने हुए कपड़े थे उसमें आ गया। तो आके मैं देखता हूँ कि यानी बाबा जी के घर में गया, और मैं देखता हूँ कि एकदम यानी कोई आश्रम जैसा नहीं है, परिवार के रूप में जी रहे हैं, एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह जी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे कोई एकदम यानी विद्वान लोग कुछ आके बैठे हैं, और यानी विज्ञान के ऊपर, परमाणुओं के ऊपर चर्चाएं हो रही है ना, समाज के मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है।
तो मुझे वो वातावरण बहुत बढ़िया लगा। वहाँ पे मैंने सिर्फ जाके सुना था, फिर देखा कि मैं तो यहाँ बिना पूछे पहुँच गया हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को भी वहाँ पे एक जगह मिली, स्वागत किया और मुझे बाबा जी से मिलने मिला और उनको देख के लगा कि ये सच में यानी हमारा थोड़ी उनके साथ बातचीत हुई। बातचीत में मुझे लगा कि ये व्यक्ति है जो कुछ समझे हुए हैं। और वहाँ से फिर मुझे पता चला कि अछोटी में, रायपुर में अछोटी करके जगह है, वहाँ पे इसका 6 महीने का वर्कशॉप होता है। तो फिर मैंने तय कर लिया था कि इसको 6 महीने का वर्कशॉप करेंगे। और तो बीच में मैंने गांव में जाके काम किया, तो मुझे लगा कि तो ये जो बाबा जी से मिलने के बाद करीब 2 साल मैंने 1.5-2 साल गांव में काम किया और मुझे लगा कि अभी मेरी जो समझ है वो पूरी नहीं है। यानी सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है वो भी पता चलना चाहिए। दूसरा ऐसा भी लगा कि चलो किसी को स्किल सिखा दी है ना, तो स्किल सिखाने से वो पैसा तो कमा लेगा पर समझ नहीं आएगी, समझ कहाँ से आएगी है ना। तो जो मूल्यों वाला जो पार्ट है वो कहाँ से पूरा होगा, ऐसा सब चल रहा था। क्योंकि देखने में आया था कि संस्थाओं में स्किल सिखा देते हैं गांव वालों को, फिर गांव वाले वो उसी जीवन शैली में जाते हैं, वो भी भोग की जीवन शैली में चले जाते हैं, फिर वो अपने आप को ही नुकसान कर देते हैं। तो ऐसा सब चल रहा था। फिर मैंने तय किया कि भाई अछोटी का 6 महीने का अध्ययन शिविर ज्वाइन करेंगे। तो अध्ययन शिविर ज्वाइन किया, 6 महीना पूरा हो गया और कुछ समझ में नहीं आया। तो तब मुझे इतना क्लैरिटी हो गया कि मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं। तो फिर मैं यानी पहले से ही जो सोच था कि मेरा खुद का प्रश्न है तो मुझे खुद ही उसके ऊपर काम करना है। तो उसके बाद फिर मेरा इतना समझ में आ गया था कि कुछ लाइफस्टाइल है वो उस तरीके से मुझे जीना है, गांव में जाके जीना है, खेती करना है और एकदम यानी प्राकृतिक शुद्ध वातावरण में रह के मैं अच्छी तरह से जी पाऊंगा। तो वो भी प्रयोग करके देख लिए। फिर कुछ दोस्त वहाँ पे बड़ौदा में, गुजरात में साथ में मिलके रह के देख लिए और तो वहाँ पे हम लोगों को समझ में आया कि हम लोग साथ में मिलके नहीं रह पा रहे थे। क्यों नहीं रह पा रहे? क्योंकि एक को समाज में जाके काम करना है, एक को समाज में जाके नहीं काम करना है, एक को डिग्री चाहिए अभी और कुछ नहीं चाहिए, दूसरे को स्वयं पे काम करना है, तीसरे को और कुछ काम करना है, चौथे को नौकरी करनी है। तो ऐसा यानी किसी का कोई लक्ष्य में एकरूपता नहीं है, दूसरा कार्यक्रम में एकरूपता नहीं है। अगर कार्यक्रम एकरूप बनाने का ट्राई करे तो फिर वापस वो टूट जा रहा है। तो ये भी स्पष्ट हुआ कि लक्ष्य और कार्यक्रम में एकरूपता चाहिए। और दूसरा हम लोग जो आपसी चर्चा किए 2 साल तक जो मित्र लोग, तो उसमें ये निकला कि हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं अभी भी और उस पर हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा गोष्ठियाँ करेंगे तो उसमें से हमारी समझ बनेगी। तो रेगुलर मिलना चाहिए हमें और लोगों को मुलाकात भी लेनी चाहिए, पूरा समूह मिलके। तो ये सब कार्यक्रम तय हुआ पर ये फेल हो गया, यानी ये आगे ही नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि सबका लक्ष्य एक नहीं था। तो फिर ऐसा सोच में आया कि ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे युवाओं के जो प्रश्न है, युवाओं का जो इस उम्र में जो करना चाहते हैं, अलग अलग स्किल सीखना चाहते हैं। अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो एक चीज़ के मास्टर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो छूट जाती है। तो उसके लिए करेंगे क्या? क्योंकि जीवन में तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे कोई बल्ब है वो खराब हो गया, उसको ठीक कैसे करना है, या पंखे को ठीक कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ तो हम कर सकते हैं, उसको दूसरे के आधार पे क्यों करना, और सिखा भी सकते हैं। तो ऐसा सब चल रहा था। उसमें फिर मानव तीर्थ का प्रस्ताव आया था कि यहाँ पे अध्ययन शिविर शुरू होने वाला है 3 साल का और यहाँ पे ऐसे ही चीज़ें चलेगी। तो उसमें भागीदारी करने के लिए प्रस्ताव आया था। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, बिना सोचे एकदम उसको निर्णय कर लिया। और वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो मेरा सोचना था कि एक ट्रेनिंग सेंटर या एक कॉलेज कैसी होनी चाहिए
जो एक युवा को आगे के समय के लिए यानी परिवार में जीने के लिए तैयार कर पाए। उसके लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, साथ में मिलकर कैसे जीना है, व्यवहार के जो इश्यूज आते हैं, एक दूसरे से झगड़े होते हैं, उसको कैसे हमें डील करना है, तो वो वहाँ पे हो पा रहा है। दूसरा अलग अलग विषय है, जैसे खेती है, फिर ज्योतिष है, फिर भाषा है, अलग अलग भाषा है, कंप्यूटर है, अलग अलग ड्राइविंग है, ऐसे स्किल्स है। तो उस पर कैसे उस पर हम वो भी हमें सीखना है, उस पर भी हम एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी वहाँ पे हो पा रहा है। तो आपने वीडियो में भी देखा कि हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ऐसी जो 3 जगह अभी है, इंदौर है, छोटी है और मानव तीर्थ है। तो मुझे यानी मेरा 1 साल वहाँ पे हो गया। मुझे लगता है कि मैं जो जगह के बारे में सोच रहा था, यानी तो उसमें वहाँ पे रह के मुझे ये मिल पा रहा है। तो और मुझे लगता है कि आगे, क्योंकि हमारी पहली ही बैच है, तो आगे जाके और डबल हो जाएगा ये मिलना। और ये भी देखा है कि मेरी जो ग्रहण क्षमता है, जो भूख है, वो भी बड़ी है। शारीरिक भूख भी बड़ी है, श्रम की कैपेसिटी भी बड़ी है और मानसिक भूख भी बड़ी है। तो और चाहिए ऐसा लग रहा है। तो आप सब लोगों को भी प्रस्ताव है कि आप वहाँ आके देखिए, 2-3 दिन 4 दिन रह के देखिए ये जो भी जगह है। ठीक है, धन्यवाद देवक भैया प्रस्तुति रखने के लिए। इसके बाद मनन भैया है, जो वही सेम मानवतीर्थ से है, वो अपनी प्रस्तुति रखेंगी। ये आखिरी वाली होगी। यह आखिरी प्रस्तुति है। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसे हमारे 2 विषय थे कि एजुकेशन एंड रिलेशन, तो 2 दिन हमने उस पर चर्चा की। तो मैं भी युवावस्था में हूँ और उसी सभी प्रश्नों से गुजरा हूँ। तो जैसे कुछ प्रश्नों को हम देखें कि पढ़ाई माने एजुकेशन, शिक्षा किस लिए और कितना लेना है। और जब मैं डिप्लोमा में पढ़ रहा था, तब मेरे को ये प्रश्न हो रहा था कि यदि मेरे को नौकरी एक किसी सब्जेक्ट में करना है, तो यार सभी सब्जेक्ट में को क्यों पढ़ा रहे हैं, कोई एक ही पढ़ा दो, उसी में मुझे एक्सपर्ट बना दो। आपको भी कुछ ऐसा कभी महसूस हुआ होगा। फिर आगे देखते हैं कि हमारा गोल क्या है पढ़ने का, या हमारा करियर क्या है, करियर ऑप्शन क्या सिलेक्ट करें हम लोग। हमको पैसा ना कमाना है तो कैसे कमाएं या कितना कमाएं, ये सभी युवावस्था के प्रश्न हैं। और यदि संबंधों में हम देखें तो माता पिता के साथ हमारा अच्छा संबंध कैसे हो, जैसे मैं जो चाह रहा हूँ वैसे वो मेरे माता पिता उसमें हाँ कैसे बोले, और वो जो चाह रहे हैं वैसा मैं कैसे करूँ। ये जो प्रश्न है वो हमारे युवावस्था में बनते ही है। तो जब मैं मानव तीर्थ में आया, यहाँ पिछले 8 महीनों से मैं पूरा अध्ययन और अभ्यास किया, तो कई सारे प्रश्न मेरे थे जिसके मुझे उत्तर मिला और बहुत ही सटीक उत्तर मैंने प्राप्त किया। उसमें हम जैसे सोचते हैं कि हमारा शिक्षा का गोल क्या है, तो शिक्षा का गोल है कि हम सबके साथ मिलकर खुशी से संबंधों का निर्वाह करते हुए जी पाए। उसका कंटेंट क्या हो, तो इसके लिए जो उपयोगी पूरक है वही इसका कंटेंट है। और जैसे स्किल्स में हम देखे थे कि हमको कितना स्किल्स आना चाहिए या कौन सा स्किल्स हमें सीखना चाहिए जैसे हमको अच्छा नौकरी मिले। तो लगता है कि जैसे जो जीने के लिए उपयोगी है, रोज की रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम जी रहे हैं, उसके लिए जो हमें आवश्यक है वो स्किल्स हमें आना चाहिए। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत सारे कुछ है, पर जो हमें जीने के लिए जो बेसिक स्किल्स है, जैसे कुकिंग है या फार्मिंग है, वैसे जैसे हमारा खुद के खाने के लिए उपयोगी जितना सब्जी है वो खुद हम उगा लें, वैसे बेसिक स्किल्स हमें सीख लेते हैं तो हम पर एक विश्वास बनता है। आज हम इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर करते हैं, सब बहुत 15-20 साल मेहनत करके पास आउट होते हैं, उसके बाद भी हमको लगता है कि यार कुछ मिसिंग है, विश्वास नहीं बनता है। तो विश्वास यही है कि जो जिंदगी के साथ वो स्किल्स को हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमको जरूरत है जिंदगी के साथ वो स्किल्स को जोड़ने का। फिर एक है कि फाइनेंस को लेकर कि हम कैसे पैसा कमाएंगे, कैसे आगे निर्वाह करेंगे, क्योंकि अभी जो सभी चीज़ है वो पैसे से मिलता है। तो उसके लिए हमको अपने खुद के ऊपर कैसे विश्वास बने, तो हमको श्रम करना
श्रम करना पड़ेगा, हमको श्रम से अपने स्वयं से श्रम करके मैं कुछ उत्पादन कर पा रहा हूँ, उसका मैं अच्छे से निर्वाह कर पा रहा हूँ, तो उसके बाद हमें अपने में विश्वास बनेगा। संबंधों में हम देखें तो जैसे पहले का और अभी का मैं देखता हूँ, तो पहले के जो मेरे संबंध थे मेरे माता पिता के साथ, तो उससे अभी वो मेरे साथ बहुत ही खुश है। इवन जो मेरे मित्र हैं जिनके साथ अभी मैं रह रहा हूँ, वो सभी लोग भी पहले से मेरे से खुश है और हम सभी लोग आपस में बहुत ही खुशी के साथ रहते हैं। और हमने यहाँ पे मानव तीर्थ में टीम वर्क में काम करना सीखते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट रहते हैं, तो हम उसमें अलग अलग लोगों में बट जाते हैं और हम टीम में काम करते हैं। बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से हमारे लोग हैं, 12 हम मित्र हैं, तो उनके सारे मित्रों के विचार अलग अलग रहते हैं और काम करने के तरीके भी अलग रहते हैं। फिर भी हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूशन में लाते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे मित्र 30-35 लोग हैं और वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, तो सबके काम करने का तरीका अलग अलग है, पर हम सब में एक हार्मनी जैसा है, हम सब मिलकर एक साथ काम कर पा रहे हैं। और जैसे शुरुआत हमने किया, तो हमने जो रूम में रह रहे थे 4-5 लोग, उनके साथ हमने हार्मनी में रहने का प्रयास किया। उसके बाद हम जो 12 लोग हैं अध्ययनार्थी, उनके साथ अच्छे से संबंध निर्वाह करने का प्रयास किया और उसमें हम सफल हुए। उसके बाद पूरे संस्थान में जितने परिवार रहते हैं और छोटे बच्चों से लेके बड़े हमारे जो संरक्षक लोग हैं, उन सभी के साथ हमने अच्छे से रहने का प्रयास किया और उसमें सफल हुए। और अभी हम लोग यहाँ पे अलग अलग संस्थान से आए हुए मित्र लोग हैं और युवा लोग हैं, तो हम अभी सबके साथ अच्छे से निर्वाह करते हैं। तो कुल मिला के देखें तो जो शिक्षा और संबंध माने एजुकेशन एंड रिलेशन में जितने भी युवावस्था को लेकर जो मुद्दे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गहराई वाले मुद्दे हैं, वो सभी का उत्तर मुझे आखिरी जो मैंने पिछले 8 महीने जिस मानव तीर्थ में लगाए यहाँ पर, उसमें मुझे मिले। और हम सभी मित्र लोग यहाँ बैठे हैं, तो अलग अलग जगह से आए, वो सभी इसमें लगे हुए हैं। आप लोग भी इसमें कई सारे लोग लगे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको इसका तार्किक उत्तर चाहिए तो 7 दिन का शिविर है। यदि आपके जो प्रश्न है उसको आप जीना चाहते हैं, जीने में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए अध्ययन है और उसके लिए कई सारे संस्थान हैं, जैसे इंदौर में है, अछोटी में और मानव तीर्थ है, और देश की कई सारी जगह पर अध्ययन होता है। तो आप सभी का स्वागत है और बस धन्यवाद। धन्यवाद मनन भाई। सुबह से हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने प्रस्तुतियाँ की है, तो वो जिस विषय के ऊपर उन्होंने काम किए, तो उन्होंने वो प्रस्तुति रखे। तो उसमें से ये हमको देखने को मिलता है कि हम जब से बचपन से ही, मतलब जब से जन्म लेते हैं, हम अपने होता है ना, अपने बारे में या आजू बाजू बारे में, सारा अस्तित्व के बारे में, दुनिया संसार के बारे में हम एक जानने की क्यूरियोसिटी रहता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, उसी को और स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम उस चाहना से चलते हैं। तो इस दिशा में चलते हुए ये भी होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तरित होता है, बहुत सारा का नहीं होता है। तो उस दिशा में, उस स्थिति में 2 चीज़ होने की संभावना दिखती है। एक ये है कि भाई ठीक है, उत्तर नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, और हम डिप्रेशन में, कंफ्यूजन में चले जाते हैं। ये एक रास्ता है। दूसरा ये रास्ता भी दिखता है, ठीक है, अगर है तो उसका मैं डीपर स्टडी करूँ, कहीं तो होगा उसका उत्तर। ऐसा भी नहीं होगा कि उसका उत्तर नहीं हुआ तो ये सवाल ही नहीं हो सकता है। इस प्रकार भी एक हो सकता है। तो ये भाई बहनों ने जितने भी ऐसा प्रस्तुतियाँ की है, तो वो सकारात्मक रूप में उस दिशा की ओर वो थोड़ा काम की। तो जितना काम किया बढ़िया है, तो सबके लिए तालियां हो जाए। तो इसमें से ये भी दिखता है कि इस प्रकार हम डिप्रेशन में ना चलते हुए थोड़ा सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम उस हमारे जितने भी क्वेश्चन है उसको उत्तरित करने के लिए हम अगर सही दिशा में जाते हैं, उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका उत्तर है। तो ये जिस प्रकार जिस संस्थानों में ये लोग अभ्यास कर रहे हैं, जिस प्रकार स्टडी कर रहे हैं, तो हम कहीं उस दिशा में जा सकते हैं। तो ये संस्थान स्वरूप में प्रधानतः 3 संस्थानें हैं।
मानापीर अछोटी में है एक और इंदौर में एक है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जगह पे परिवार स्वरूप में जीने के प्रयास भी हो रहे हैं, कुछ समूह के स्तर पे भी हो रहे हैं। तो आपको अगर इच्छा हो थोड़ा बहुत इस दिशा में जाने की इच्छा बनती है तो आप सारे जगह में भी देख सकते हो और संस्थानों में भी आके देख सकते हो। मन बना तो आप इसको और डीपर स्टडी करने में लग सकते हो। धन्यवाद।